देखिए आज जो हम करेंगे वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लिमिट का। समझिए, आज हम करेंगे लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinity. Just try to understand that this 1 is not exact 1. ये exact 1 नहीं होगा। जैसे आप समझ के देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. Now try to understand it. When x tends to 0 plus greatest integer of 0 plus, this is exact 1. Are you getting this? हाँ जी बेटा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सॉरी जीरो आएगा बेटा, जीरो जीरो जीरो, एग्जैक्ट जीरो। तो ये जो क्वांटिटी आ जाएगी ये क्या आएगा? एग्जैक्ट जीरो रेज टू पावर इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग दिस? तो एग्जैक्ट जीरो प्लस 1 की पावर इन्फिनिटी, सॉरी। सो नाउ इट विल बी एग्जैक्ट 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1 बेटा। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। इट इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेसिकली अगर आप देखें, मेरे पास ये वाली फॉर्म है y इक्वल टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी। दिस 1 इज नॉट एग्जैक्ट 1। तो अगर मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं तो हमारे पास आ जाएगा, नाउ सिंस x is approaches to 1, so this log 1 tends to what? 0. This is infinity into 0. So this is the indeterminate form. This 0 is not exact 0 beta. This 0 is not exact 0. Okay. अब यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने वाला हूँ जिसके बेसिस पे हम काफ़ी अच्छी अच्छी लिमिट्स निकालेंगे। सपोज मेरे पास मुझे ये लिमिट इवेलुएट करनी है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर x. नाउ सी, when x tends to infinity 1 by x tends to 0, so 1 plus 1 by x tends to 1. So you can clearly see this is nothing but not exact 1, so 1 to the power infinity. This is the indeterminate form. पहले तो देखेंगे लिमिट किसके बराबर आएगी। हमने e की पावर x का एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, ये था लाइक दिस। क्लियर है ना सबको ये वाला एक्सपेंशन बेटा? अगर मैं यहां पर x को 1 लेता हूं तो e कितना आता है? आर यू गेटिंग दिस? sir. Like this is the expansion of e. Now I will be using binomial expansion 1 plus x की power n. This is equal to 1 plus nx n into n minus 1 by factorial 2. Please try to understand that why I am not writing in terms of NCR. I will give you the reason. Like this. Here modulus of x is less than 1. Here x and n are any real number. This is the binomial theorem for any index. Binomial theorem for any index. For any index means
this n can be any real number. Are you getting this? But provided this modulus of this x should be less than 1. Modulus of this x should be less than 1. Are you getting my point? Suppose you are want to write 1 plus x raised to power minus 1. Then this expansion will be 1 minus x, because n is minus 1, then minus 1 into minus 2 by factorial 2 of x square, like this. Are you getting this or not, beta? Please tell me. Yes, yes, sir. And so on. So this will give you this expansion 1 minus x plus x square minus x cube, and so on. So based on this, I will be using the same expansion, that is, let us expand 1 plus 1 over x raised to power x. Now use this expansion here. This will be equal to 1 plus x into 1 over x plus x into x minus 1 over factorial 2 into x square plus x into x minus 1 x minus 2 by factorial 3 into 1 over x cube. Is that okay? And so on. Sorry, 1 over x cube into x cube. Sorry. Yes, 1 over x cube. क्योंकि x क्या है बेटा, 1 by x है. मैंने यहाँ पे भी गलत लिखा है. 1 over x square, and here it will be 1 over x cube. Now try to understand it. We want to evaluate the limit of this expression. The limit x tends to infinity of this expression. 1 plus 1 over x raised to power x. यहाँ से तो ये आ जाएगा 1. Now see, यहाँ से मैं x square कॉमन इस ब्रैकेट से, क्योंकि हाउ टू इवेल्युएट लिमिट एट इन्फिनिटी बताया था ना हमने, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे. तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ से भी ऊपर हर एक ब्रैकेट से x कॉमन लेंगे तो x क्यूब इंटू 1 माइनस 1 ओवर एक्स 1 minus 2 over x by factorial 3 into 1 over x cube, and repeat the same pattern. So x cube will get cancelled, x square will get cancelled. Now when you take the limit, what you will get? 1 plus 1 plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial and 1 over 4 factorial. Can you recognize this series? अभी अभी हमने लिखी थी. This is the expansion of E. Are you getting this? Please Yes, tell yes, me. sir. So this tends to E. So therefore what we have achieved, that whenever limit x tends to infinity, 1 plus 1 over x raised to power x is nothing but E. This is the really important result, और इस पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. ज़रा उसको देखने समझने की कोशिश करना. देखिए, now we have दिस रिजल्ट. नाउ सपोज इस रिजल्ट को दोबारा मैं रीस्टेट भी कर रहा हूँ दूसरे तरीके से. अगर मैं 1 ओवर x को y ले लूँ, तो अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू 0 हो जाएगा. तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस y रेज टू पावर 1 ओवर y, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू E. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, yes, sir. Now based on this result, we have very important questions. Suppose my first question is, evaluate limit x tends to 0 1 plus 2x raised to power 1 over x. देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर जीरो पे लेना है तो ऐसे लेना है. तो बेसिकली ये फॉर्म है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स. तो अभी किस चीज़ की कमी लग रही है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2x and whole square. Please tell me. Please do reply. या मैं इसको ऐसे लिख लूँ? Please tell me. Yes, Can you yes, write sir. this way? अगर मैं 2x को t ले लूँ तो
अगर x टेंस टू 0 है तो t टेंस टू 0 है, तो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट t टेंस टू 0 1 plus t and 2 over t. Can you tell me the limit of this expression now? E square. E square, yes. So limit of this expression is e square. Is that okay? या आप डायरेक्टली कर सकते हो जो मैं बता रहा था. Now we have another question. Limit x tends to 0 1 minus x raised to power x. Sorry, it is minus x. Now how will handle this? Can we write this as 1 plus of minus x, and then what will we do? Minus over minus x. Can you tell me the answer? So 1 by Yes, 1 by e. It will be e raised to power minus 1, that is 1 over e. Clear beta? Please reply. So, Now again we have limit x tends to 0 1 plus 3x square over 1x square. Now how will handle this? Can you tell me the answer? Answer is straightforward. What I will do here? multiply, divide by 3. Yes, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये 3 कर दिया, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? e. So your E. answer is e cube. E cube. Is that okay? यस सर. तो इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको हैंडल करना. और देखिए, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x square raised to power x. Can you tell me this, the limit of this expression? so 1 Yes, 1. The reason is so simple. I will be writing this way, like this, into x. Okay. And हमने आपको algebra of limits में बताया था, limit x tends to a of fx raised to power gx. हम ऐसे लिख सकते हैं, fx and limit x tends to a of gx. So how will handle this? Limit x tends to 0 of 1 plus x square raised to power of x square, and limit x tends to 0 of x. Now this limit is e, that is e raised to power 0 is 1. Got it or not beta? Please do reply. हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? Is it okay Yes. beta? Okay. Now we have another question. Evaluate this limit. X tends to 0 1 plus sine 3x raised to power 1 over x. क्या करना पड़ेगा? We'll be writing this way. हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 over sine 3x over sine 3x over x. और अब इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? e, और इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड. प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? E की पावर 3. Yes, e into 1 into 3. So e cube is the answer. I hope समझ में आ रहा होगा सबको. हाँ जी बेटा. Yes. Now we have another question. Limit x tends to 0 1 plus tan 2x over 1 over x. Now how will handle this question? Again the same argument. Can you tell me the answer? E square. E square, yes.
1 plus tan 2x over tan 2x and whole raised to power tan 2x over x. Now multiply and divide by 2. Now this limit is e into 1 into 2. So your answer is e square. Is that okay? Clear बेटा? चलो अब थोड़े से कुछ और ट्रेंड्स करते हैं. अभी तक तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा फॉर्मूले में क्वेश्चन डाल देंगे सो दैट आपको फॉर्मूला पता पड़ जाए. ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 of tan of x plus pi by 4 whole to the power 1 by x. अब इसको कैसे हैंडल करना है इसको जरा ध्यान से देखिएगा. विल बी यूजिंग द आइडेंटिटी tan a plus b. अगर उसको यूज करेंगे तो बता सकते हो क्या टर्म आएंगी. 1 plus tan x over 1 minus tan x. आर यू गेटिंग दिस? यही आएगा बेटा. So वी कैन राइट दिस वे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट सेपरेट कर लेंगे लाइक दिस. 1 minus tan x. अब इसको हैंडल करना इजी है, आप ही बताइए. तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? इस वाले फैक्टर को हम कैसे लिख लेंगे? 1 plus tan x over 1 minus 1 upon tan x and this is tan x over x. Is that okay? और इस वाले फैक्टर को कैसे हैंडल करेंगे? -1 over tan x and minus tan x over x. न्यूमरेटर की लिमिट क्या आएगी? e e की and power डिनोमिनेटर की minus e की power -1 so your answer is square. e square. Is that okay? Yes, sir. Okay. Now let us do some more trends. देखिए क्या है और trends. We have the question limit x tends to infinity x plus 2 over x plus 3 whole to the power x plus 1. देखिए अब यहां आइडेंटिटी हमारी क्या थी? This type of identity was there. Okay, are you getting this? तो इसको कैसे हैंडल करेंगे देखिएगा. Can you tell me how you will handle Divided by this? तो पहले और ये वाला एक्सप्रेशन जो था जब x इन्फिनिटी पे जा रहा होता था तो ये e पे टेंड करता था. तो देखिए कैसे करेंगे इसको हैंडल. पहले तो वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं पहले 1 जनरेट करने की कोशिश करते हैं. कैसे करेंगे 1 जनरेट? क्या हम इस इंटरनल एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ yes, जी sir. बेटा. ओके, क्या उससे कोई बात बन सकती है क्या? देखते हैं. एक तो ये तरीका बन गया. ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ. प्लीज रिप्लाई करिए. Yes, sir. और यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये
ओके, अब जरा मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी। हमने ये तो देख लिया था कि यहाँ पर 1 था तो ई रेस्ट पावर 1 था ये। ओके, अगर मैं यहाँ पर 2/x को एक, मैं पहले वाला ये काम कर रहा हूँ, t ले लूँ तो, या 1/x को t ले लेते हैं, तो हमारा x आ जाएगा हमारा 1/t। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 1 + 2t रेज़्ड टू पावर 1/t। तो ये लिमिट कितनी आएगी, ये वाली e² आएगी ना, और डिनोमिनेटर की लिमिट क्या आएगी, e³। E cube. तो वी हैव e रेज़्ड टू पावर -1 इज द आंसर। इज दैट ओके बेटा? Yes. हाँ जी बेटा। Yes, sir. अगर ये अप्रोच किसी के दिमाग में नहीं आ रही हो तो एक दूसरी अप्रोच भी है, मैं वो भी हैंडल करना बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। हम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे यही वाली फॉर्म लगानी है, तो व्हाट आई नीड, मुझे 1 चाहिए, तो कैन वी क्रिएट 1, प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, कर सकते हैं इसको? प्लीज Yes, डू sir. रिप्लाई। ऐसे कर सकते हैं इसको, एलसीएम ले लीजिए इन दो टर्म्स का। सो व्हाट आई विल ऑब्टेन, x will get cancel, so I will be having -1/x + 3. Please do reply. बोलो बेटा। Yes, sir. Now how to handle this expression? See, what I will do, limit x tends to infinity, -x + 3, और बाहर हमने क्या ले लिया, x + 1 ओवर -x + 3। ये लिमिट कितनी आ जाएगी, e, इंटरनल लिमिट क्या आएगी बेटा, ये e, और इसकी लिमिट लेंगे तो वो कितनी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 1 ओवर x + 3 और माइनस साइन आउटसाइड, क्या आएगी इसकी लिमिट, 1, क्योंकि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x से। इज दैट ओके? So, अगेन आंसर इज e रेज़्ड टू पावर -1, दैट इज 1/e। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे क्वेश्चन को चेंज करना चाह रहे हैं। नाउ वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 + log बेस e of x over can you tell me the answer? When x approaches to 1, this tends to 0 and its reciprocal tends to infinity, so it is a 1 raised to power infinity form, है या नहीं है बेटा, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो देखिए इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। वैसे तो डायरेक्टली साफ साफ पता पड़ रहा है कि इसका आंसर ई है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे, अब log x को मैं t मान लेता हूँ। अगर x टेंस टू 1 है तो t टेंस टू क्या है, 0। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट t टेंस टू 0 1 + t रेज़्ड टू पावर 1/t, और ये लिमिट क्या थी, e। E. ओके, now we have another question. Limit x tends to π/2 1 + cos x over cos x।
ये भी क्या आएगा, ई आएगा। कैसे करेंगे जरा बताइए, हाउ विल हैंडल दिस। अगेन व्हेन x टेंड्स टू I by 2, cos x tends to 0 and 1 over cos x tends to infinity. So what will happen, अगेन अगर मैं cos x को t ले लूँ तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 1 plus t raised to power 1 over t. अगेन दिस लिमिट इज e. चलो थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x raised to power 1 over x. इसको कैसे करेंगे, प्लीज टेल मी, कैन एनीबडी टेल मी द वे। हम क्या करेंगे, पहले लिमिट की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, +1 -1 कर सकते हैं ऐसे। Yes. Yes. तो हमने क्या किया, लिमिट की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की यहाँ पे कोशिश करी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नाउ व्हाट आई विल डू, मेरा इमीडिएट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये फैक्टर हमने क्रिएट किया है, तो 1 over cos x minus 1 और यहाँ पर cos x minus 1 over x, ये लिमिट कितनी आ जाएगी, e आ जाएगी, वाली लिमिट e बेटा। Yes. ओके, और मुझे अब ये वाली लिमिट निकालनी पड़ेगी, ये वाली लिमिट कितनी आएगी, हमने कल की क्लास में भी किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x over x, that is nothing but 2 sin square x by 2। याद आया मैं क्या कर रहा था इस केस में, x से मल्टीप्लाई और फिर ये लिमिट तो 1 बन गई थी इनटू 0, तो लिमिट 0 आएगी। सो योर आंसर इज e raised to power -0, that is 1। One. क्लियर है बेटा। Yes, sir. Okay, now we have another good question, समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, लिमिट x टेंड्स टू e log base e of x over 1 over x minus e। क्या फॉर्म है, जब x e को टेंड करेगा तो log e क्या होता है 1, when x tends to e tends to 1 and this is nothing but 1 raised to power infinity। तो कैसे हैंडल कर लेना चाहिए देखते हैं, कैन वी राइट दिस वे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्लियर है वाला स्टेप बेटा, प्लीज टेल Yes. मी। Yes. व्हाट अबाउट दिस लिमिट, ये तो e आ जाएगा। Please Yes. multiply। अब मुझे ये वाली लिमिट निकाल लेनी चाहिए अलग से, ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्लीज Yes. रिप्लाई। हाँ जी बेटा, लिख सकता हूं ना ऐसे। Yes, sir. ओके, अगर मैं x माइनस ई को t ले लूँ तो x आएगा e प्लस टी, when x tends to e t tends to 0, is that okay? So my question shift to t tends to 0 over t। clear है बेटा। Yes, sir. So we can write log base e of e plus t over e over t, this is nothing but
1 प्लस टी ओवर ई। अब बताइए इसको कैसे हैंडल करेंगे, कितनी आएगी ये वाली लिमिट, 1 ओवर ई, 1 over और ये वाली लिमिट कितनी थी, ई, E. तो ई रेज टू पावर 1 ओवर ई इज द आंसर। इज दैट ओके? Yes, अब sir. आपने क्या देखा कि लिमिट में ही लिमिट का क्वेश्चन है या नहीं है? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, इफ लिमिट x टेंस टू 0 of 1 plus ax plus bx square raised to about 2 over x is e cube, then find the values of a and b. Then find the values of a and b. इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। पहले तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है। ओके, तो देखते हैं, हैंडल करते हैं इसको। कैन वी राइट दिस वे, 1 plus ax plus bx square, I will take this as one term, and upon is that okay beta? Yes, sir. Is that okay? Now this limit will be e and this is equal to e raised to power 3. अब समझने की कोशिश करना। Now the question shift to limit e raised to power x tends to 0. If I try to cancel this x, we can cancel this x. So I will be having twice a plus bx. Is that okay? Please tell me. हाँ जी बेटा, तो e raised to power 2a is equal to, तो a is equal to 3/2. What will be the value of b? Can you tell me? b कहाँ गया, बताइए। So 0. नहीं, अच्छा एक बात बताओ, b को आप चाहे कोई भी वैल्यू दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है a की वैल्यू पे? No, sir. So we should write b can take any real value. b को आप चाहे कुछ भी ले लो, जब x टेंस टू 0 होगा तो ये हमेशा 0 पे टेंड करेगा। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. चलो अभी हमने ये जितना आज की क्लास में बताया है, अब इसका शॉर्टकट देने का वक्त आ गया है। इन क्वेश्चंस को शॉर्टकट से कैसे करेंगे, ठीक है? अभी तो मैं खाली आपको ये फॉर्मूले जितने मैंने बताए हैं, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि यार ये फॉर्मेट सारे हम लगा कैसे रहे थे। अगर मैं आज की क्लास की बिगिनिंग में जाऊं तो हमने मेनली क्या बताया था, मेन फॉर्मूले हमारे ये 2 फॉर्मूले थे, यही थे ना बेटा? ये 2 फॉर्मूले Yes. थे, और इसके बेसिस पे मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा था कि यार ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेके चल रहे थे, और हमने सारी कैलकुलेशन इसके बेसिस पे की है। चलो इसको जनरलाइज करते हैं, इस आइडिया को। लेट अस जनरलाइज दिस आइडिया। देखिए कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले ये पढ़ा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 plus x raised to power 1 over x is equals to e, and limit x tends to infinity, 1 plus 1 over x, ये भी e, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फॉर्म। नाउ लेट अस जनरलाइज दिस। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है, x टेंस टू a
fx रेज टू पावर gx। और यहाँ कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx वो कितना है 1, ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx वो कितना इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो हम इसको कैसे हैंडल करते थे, हम +1 -1 कर लेते थे। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो आप मुझे ये बताइए ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर लिमिट East one. x टेंस टू a ऑफ gx इंटू fx -1। प्लीज टेल मी। Yes. हाँ जी बेटा, इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब अब हमें इस शॉर्टकट से क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ जी बेटा, Yes, sir. देखिए करके दिखा रहे हैं। ये अब आपका मेन शॉर्टकट होगा जब भी आप ये लिमिट निकाल रहे होंगे। क्या करना है, मान लो आपसे क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है suppose the question is evaluate अभी अभी हमने किया था x टेंस टू 0 cos x रेज टू पावर 1/x। तो मुझे स्ट्रेट अवे क्या लिखना चाहिए आप ही बताइए, e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, what is gx here? 1 by x. 1/x। what is fx? Cos x. और ये लिमिट हमारी कितनी आई थी, 0। 0. 1. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes. हाँ जी बेटा। Yes. Now again my question is evaluate this limit x tends to pi by 4 tan x raised to power tan 2x 1 to the power infinity है, आप ही बताइए। Yes, तो sir. अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाना चाहिए, e raised to power limit x tends to pi by 4, what is gx function here, tan 2x into tan x minus 1। is that okay? please do reply। हाँ जी बेटा। Yes. Yes. अब जरा हमें इस वाली लिमिट पे फोकस कर देना चाहिए, अगर ये लिमिट मिल गई तो देन वी आर डन। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस। सी अगर मैं इसी लिमिट को फोकस कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, है या नहीं है? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो मैं इसको देखिए कैसे हैंडल करूंगा। वी हैव द आइडेंटिटी ऑफ tan 2x और नॉट? Yes, so 2 tan x upon 1 over 1 minus. minus tan square x होती है ये वाली आइडेंटिटी। सो वी कैन राइट दिस एज 2 tan x, माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ, 1 प्लस tan x एंड tan x minus 1 and tan x minus 1। now see this will get cancelled,
Now when x tends to pi by 4, can you tell me where this limit will tend? 2 into 1 over minus 2. So this limit is minus 1. -1. So your final answer is e raised to power minus 1. 1 by e. समझ में आ गया बेटा? हाँ जी. Again I'm rewriting the expression. कि whenever you are finding this limit, किसके बराबर था ये? e raised to power limit x tends to a of gx into fx minus 1. Is that okay? Please do reply. Now we Yes, have sir. the question. Evaluate this limit. Limit x tends to 0, 2 raised to power x plus 3 raised to power x over 2 whole to the power 1 by x. Now see, again it is a 1 to the power infinity. देखिए ये देखना बहुत जरूरी है कि फॉर्म उसमें है या नहीं. जबरदस्ती आपको लिमिट की वो टूल नहीं लगाना, पहले देखना है कि उस फॉर्म में क्वेश्चन है या नहीं है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? So this limit will be equal to e raised to power limit x tends to 0. Can you tell me what is gx? Gx is 1 over x. And then we will be writing क्लियर है वाली बात बेटा? हाँ जी बेटा. Let us simplify this limit. So I will consider only this part. Can we write this way? Over 2x. Please tell me. And I can write this as 2 raised to power x minus 1 over x and 1 upon 2. Can we write this way? Please do reply. ये लिमिट कितनी आएगी? log 2. ये लिमिट कितनी आएगी? log 2 by 3. log 2 plus log 3. So this limit is 1 by 2 of log 2 plus log 3. Okay. And which is same as 1 by 2 of log 6 and which is same as log root 6. Is that okay? So your final answer is e raised to power log base e of root 6. This will neutralize. So your answer is root 6. Is that okay? हाँ जी बेटा. तो आपने देखा हमने क्वेश्चन को क्या किया, पार्ट्स में ब्रेक करके उसको हैंडल किया है. समझ में आ रही बात बेटा? Yes, हाँ जी sir. बेटा. Okay, one more problem from this part. Let us see how you will handle this question. The question is, evaluate limit n tends to infinity 1 minus x plus x and nth root of e whole to the power n. Sir, limit n tends to infinity है. Yes. तो पहले तो फॉर्म बताइए क्या बनेगी. x पे लिमिट नहीं है, अगर आप जरा ध्यान से देखें. ये लिमिट किस पे नहीं है? x पे लिमिट नहीं है. ओके. तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे? तो पहले तो इसको लिख लीजिए. और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब मुझे ये बताइए, ये जो एक्सप्रेशन है
ये आपका क्या है पूरा एफ एन, यहाँ पे एन की टर्म में लेना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि लिमिट एन पे है। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। और Yes. तो हम इसको कैसे करेंगे? अब और हमारा ये फॉर्म था एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, और जो कि बनता था ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए। क्या लिखते थे हम, जरा बताएंगे? जी एक्स इंटू, Gx fx minus 1. तो लगाओ फॉर्म, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, जी एक्स क्या है यहाँ पे एन, एफ एक्स क्या है पूरा ये 1 माइनस एक्स, नाउ दिस विल गेट कैंसल। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, नाउ वी हैव ई रेज टू पावर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। इन दोनों एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स कॉमन आ जाएगा, और इस एन को मैं इसके नीचे ले आऊंगा। आर यू गेटिंग दिस? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 1। 1 तो मेरा आंसर क्या आएगा? ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1। x. सो आंसर इज ई रेज टू पावर एक्स। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है हमारा एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल से हम क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे वो जरा समझना। एल हॉपिटल रूल, देखिए बेसिकली जो एल हॉपिटल रूल है वो सिर्फ इन दो फॉर्म के लिए बना, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। बाकी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम इन दो फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? अगर 0 इंटू इन्फिनिटी है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब बन जाएगा 0 इंटू 1/0। बन गया 0/0 फॉर्म? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सपोज आपका फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स। मान लीजिए ये वाली फॉर्म अटेन कर रहा है, आइदर 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं? हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से कर लेते हैं, और तब तक लिमिट इवैल्यूएट करते रहते हैं तब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। जैसे आप समझिए, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 2 बार भी डिफरेंशिएट करना पड़े, एफ डबल डैश एक्स भी आ जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं अभी, ये IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर sin 2 pi x. This question was asked in IIT JEE. Clearly, sin 2 pi is 0. So it is a 0/0 form. है या नहीं है बेटा? रिप्लाई करिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का Minus 2x. x। अब sin 2 pi x का हम कैसे निकालेंगे? Sir, 2 pi cos 2 pi x. Cos 2 pi x into 2 pi. So we left with this minus 2x over 2 pi over cos 2 pi x. Again this will get cancelled out. Now take the limit x tends to 1. न्यूमरेटर की लिमिट कितनी आ रही है? -1
pi into cos 2 pi. Please tell me what is cos 2 pi. Cos 2 pi is 1. So the answer is minus 1 over pi. Clear है बेटा? हाँ जी बेटा. Yes, Please sir. do reply. Now see one more question of this category. Limit x tends to 0 of e raised to power x square minus cos x over x square. Now when we substitute x equal to 0, what we are getting? 0 by 0 form. Now differentiate numerator and denominator separately. What is the derivative of e raised to power x square? E raised So to power e x raised to square power x square dot 2x. plus sin x, और यहाँ आ गया 2x. आ गया? Yes, sir. Can we write this as e raised to power x square 2x over 2x sin x over 2x. Now how will you handle this? इसकी लिमिट आएगी e raised to power 0 is 1 और sin x by x की लिमिट कितनी आएगी? 1. 1. So your answer is 3 by 2. Is that okay? Yes, sir. Okay. Now let us consider one more problem. Limit x tends to 0, 16 plus 5x raised to power 1 by 4 minus 2 over 32 plus 3x raised to power 1 by 5 minus 2. पहले जीरो डालिए, 2 माइनस 2 और नीचे भी 2 माइनस 2, 0 बाई 0 फॉर्म है. तो भाई डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखिए क्या आता है. 1 बाई 4 इंटू 16 प्लस 5x, 1 बाई 4 माइनस 1, ओके, और 5x का 5. डिनोमिनेटर का अलग से निकाल लीजिए. 1 बाई 5 32 प्लस 3x 1 by 5 minus 1 into 3. Now let us find this limit. When I substitute this x tends to 0, what will happen? एक तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा 25 by 12, 16 raised to power कितना बनेगा? माइनस 3 by 4 Yes, sir. अपॉन 32 raised to power कितना बन जाएगा? माइनस 4 by 5. By 5. If I try to handle this expression, ये क्या बनेगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन? 2 raised to power minus 3 1 by and this is 2 raised to power minus 4. Please tell me, यही बनना चाहिए ना बेटा? हाँ जी बेटा. तो 25 इंटू 2 अपॉन 12, तो हमारे पास बन जाएगा ये 25 25. अपॉन 6 बनना चाहिए ना? Yes, sir. That is the answer. Now we have one more question. See, limit x tends to 0, log of 1 plus 2x minus 2 log 1 plus x over x square. Again, this is the question from IIT JEE. पहले तो देखिए फॉर्म क्या है. x को 0 डालेंगे, log 1 is 0, तो 0 by 0 फॉर्म है. लेट अस अप्लाई एल हॉपिटल रूल. तो देखिए क्या आएगा. अगर मैं अप्लाई करता हूं तो हमारे पास आएगा 2 over 1 plus 2x माइनस 2 over 1 plus x
over 2x. Please tell me. हाँ जी बेटा, Yes, sir. यही आएगा. Yes, sir. So 2 कॉमन लेके कट जाएगा. 2 तो सारा ही कैंसिल हो जाएगा. ऊपर एलसीएम ले लेते हैं. 1 plus x minus 1 minus 2x over x into 1 plus 2x into 1 plus x. This will get cancel out. और ऊपर माइनस एक्स बचेगा और x से x भी काट दूंगा तो माइनस 1 ओवर ये बच जाएगा. प्लीज टेल मी. तो लिमिट कितनी आ जाएगी? -1. क्लियर है बेटा? Yes. हाँ जी बेटा. ओके, देखिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको जरा हैंडल करके देखते हैं. नाउ वी हैव द क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू लॉग एक्स. अब जरा ध्यान से देखिएगा, log x का ग्राफ कैसे बनता है. ये बेस e है, यानी मोर देन 1 है बेस, लाइक दिस. When x tends to 0, log base e of x tends to minus infinity. So this is the form 0 into minus infinity. अब यहाँ एल हॉपिटल रूल अभी नहीं लगाएंगे, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे. विल ट्राई टू कन्वर्ट आइदर बाय 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. डायरेक्ट नहीं लगाना है. तो कैन वी रीराइट दिस एक्सप्रेशन log base e of x over x. तो अब ये क्या बन गया? प्लीज सॉरी 1 over x. सॉरी, this is infinity by infinity form. Now we can apply. Let us apply. log x का डेरिवेटिव 1 over x और 1 over x का -1 over x square. Is that okay? Please tell me. कितना आ जाएगा? -x, और -x की लिमिट 0. So its limit is 0. क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई. Yes. चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, वो भी देखिएगा कैसे हैंडल करेंगे इसको. देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है. इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x raised to power 4 over e raised to power x. कैसा फॉर्म है? e raised to power infinity is infinity, so it is infinity by infinity form. लगाइए, क्या आएगा? 4x क्यूब over e की पावर x. Still it is infinity by infinity form. Sorry, 0 लिख रहा हूं मैं. Still it is infinity by infinity form. Again differentiate. 4 into 3 into x square. Still it is infinity by infinity form. Again differentiate. Again infinity by infinity form. Now again differentiate. What is that? 4 factorial over e raised to power x, that is limit x tends to infinity. 4 factorial over e raised to power infinity. What is e raised to power infinity? Infinity. Your answer is 0. Is that okay beta? Please reply. Clear है सबको? Please do Yes, reply. sir. Okay. अगर इसी को मैं जनरलाइज करूं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n over e raised to power x, where n belongs to the natural number, then its answer is 0. Is that okay or not? Please do reply. हाँ जी बेटा.
नाउ वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन, इसको भी देखिए। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0, log base 10 square x of 10 square 2x। ओके, पहले देखो इस क्वेश्चन का बेस चेंज होगा, उसके बाद बात करेंगे फॉर्म की। याद है बेस चेंजिंग फॉर्मूला? वी कैन राइट So log log base, tan square 2x upon log tan. now tan 0 is 0 and log 0 is minus infinity, so it is minus infinity over minus infinity, that is infinity by infinity form. Now can we apply L'Hopital rule? Let us apply. पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 over 10 square 2x, then 2 tan 2x, then 10 का sec square 2x and 2x का 2. Is that okay? जल्दी बोलिए। Yes, so Then 1 over 10 square x, 2 tan x into sec square x. Is that okay? एक तो ये यहाँ से उड़ जाएगा, एक ये यहाँ से उड़ जाएगा, एक 2 भी उड़ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो tan 2x और नीचे tan x है। मैंने उसको तो कैंसिल ही नहीं किया ना बेटा, स्क्वायर है ना ये इसको इससे किया है ना। ओके सर। अब एक बात आराम से देखना, जब x टेंड्स टू 0 होगा, इसकी लिमिट कितनी आएगी 1, इसकी लिमिट कितनी आएगी 1। प्लीज टेल मी। तो इनको तो निपटा ही दो, तो मेरे पास फाइनली ये बचना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, व्हाट आई लेफ्ट विद, कैन यू टेल मी? So tan x upon tan 2x. 2 into 2 tan x over tan 2x। tan 2x. अब बताओ ये लिमिट क्या होती है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करते थे, याद आ गया? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और ये 2 आगे बाहर होता था, बाहर है, तो ये लिमिट इसकी 1, इसकी भी 1, तो 2 into 1/2, so our limit is 1. I hope it is clear now. Please reply. हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, क्लियर है या नहीं है? जल्दी बोलिए। तो है। एक IIT JEE का क्वेश्चन है, और आराम से देखिएगा कैसे हैंडल करेंगे। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। Let fx be twice differentiable function and f double dash 0 is equals to 2, then evaluate the limit x tends to 0 to fx minus thrice of f of 2x plus f of 4x over x square. This is the question asked in IIT JEE. कैसे हैंडल करेंगे इसको, देखिएगा। कैन यू टेल मी द वे? पहले मुझे बताइए, क्या 0/0 फॉर्म है? क्या 0 डालिए, क्या आएगा? ये भी f of 0 0/0 0/0 फॉर्म है या नहीं है? तो लेट अस अप्लाई L'Hopital रूल। तो 2 f dash x minus 3 f dash 2x, and 2x का क्या आएगा 2, तो कैन आई राइट डायरेक्टली 6 हियर?
then 4 times of f dash 4x over 2x. Now still it is 0 by 0 form. एक तो तुम्हें वैसे भी हिंट मिल जाना चाहिए कि f डबल डैश 0 की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब 2 बार तो कम से कम डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा. एक बार और करिए डिफरेंशिएट. 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स. अब ये कितना आएगा? 12 इंटू एफ डबल डैश 2x प्लस 16 और नीचे 2x का डेरिवेटिव 2. अब डालिए वैल्यू 2. पहले तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए. नहीं अभी नहीं होगा. 2 एफ डबल डैश एट 0 माइनस 12 एफ डबल डैश एट 0 एफ डबल डैश एट 0 बाई 2. ये आ गया 16 प्लस 2 इज 18. तो 6 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश 0 ओवर 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश 0? 2. 2. तो लिमिट कितनी आ जाएगी? 6. सो योर लिमिट इज 6. आई होप इट इज क्लियर बेटा. आपने क्या देखा कि एल हॉपिटल रूल से ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया. हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? Yes. Okay. Now I will be discussing 2 more form of the limit. How to handle, how to evaluate 0 raised to power 0 and infinity raised to power 0. देखिए अगर y is equal to 0 raised to power 0 है, this 0 is not exact 0. Please try to understand that. We'll be taking log. मैंने पहले भी बताया था. Log 0 is, what is log 0? Minus infinity. And then what I will do? I will be writing minus infinity over 1 by 0. That become minus infinity by infinity form. Then we'll use L Hospital rule. So I am evaluating such question. Just try to understand it. The question is evaluate the limit x tends to 0 plus of x raised to power x. Certainly this is 0 raised to power 0. So how will handle this? We are assuming that let y equal to limit of this expression. Now taking log both side. Is that okay beta? Now Yes, we'll be yes. writing this way. Now what is this form? This is 0 into minus infinity form. So I will be writing this way. Over 1 over x. Now apply L Hospital rule. 1 over x minus 1 over x square. This is minus x. This limit is 0. So log base e of y is 0. So y is equal to e raised to power 0. That is 1. और y हमने क्या माना था इसकी लिमिट? So therefore the limit of this expression is 1. Is that okay बेटा? Please reply. समझ में आ गया बेटा? हाँ जी बेटा, क्लियर है? Yes. तो इस टाइप के Yes, sir. एक्सप्रेशन को हमें ऐसे हैंडल करना पड़ेगा. तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हैंडल करना है. तो देखिए थोड़ा सा मैं ये मान सकता हूँ 11th क्लास के बच्चों को का जो डेरिवेटिव पार्ट है वो वीक रहा है होगा, उन्होंने ये इतना सब नहीं पढ़ा होगा. बट आई विल बी कवरिंग सून कि ये सारा पार्ट भी आप लोग कर पाएँ. ठीक है ना? समझ में आ रही बात?